A very good morning to you all, children. So, today we'll start your new session with a new chapter in your reader book, which is Honeysuckle. And we'll start this chapter. I already told you to give it a reading, so you all might have read it. So, today we'll start a new chapter, which is Who Did Patrick's Homework, written by the author Carol Moore. So, before we read this chapter, I just want to ask you that is there any magic when we believe in some magic? Is really there is a magic when we pray to God, and if we feel that if we are praying to God that we pray and then we'll pass in exams, does this happen? So you have to think about it. God helps those who help themselves. So those who are working hard for themselves, then only they can pass or they can produce results. So I'll be teaching you in a bilingual language. I'll teach you when I read the story. I'll teach you in Hindi also. I'll explain you so that you can understand it better. सो मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. जब आप अपनी पढ़ाई या अपने लिए हार्ड वर्क करते हो तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं. सो अभी दिस चैप्टर इज़ अबाउट दिस ओनली. देर इज़ अ बॉय कॉल्ड पैट्रिक. वील रीड द स्टोरी हाउ दिस स्टोरी गोज़. आगे जाके कैसे होता है. पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं है और ही बिलीव्स कि अगर कोई मैजिकल पावर हो या इस तरीके से मेरा होमवर्क हो जाए तो दैट विल बी बेटर. इन द एंड ही इज़ एबल टू डू हिज होमवर्क and he thinks that it is a magic, but is it a magic or not, we'll read in this chapter. Okay, I'll read the chapter one by one by a paragraph only, and after this reading a paragraph I'll explain you the meaning only. So here we go. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. सो पैट्रिक नेवर लाइक्ड हिज होमवर्क. उसको होमवर्क पसंद नहीं था. ही यूज टू से कि इट इज़ बोरिंग. वो हॉकी, बास्केटबॉल और निन्टेंडो खेलता था. So you have to, children, whenever you are reading a chapter, you have to listen to it carefully. So there are hidden words, there are some lines which they can ask you the question afterwards. So आपको पता होना चाहिए कि which games Patrick used to play. He used to play basketball, hockey and Nintendo. Nintendo is a video game. It is a kind of video game. So these were the three games he used to prefer playing rather than studying. So पढ़ाई के बजाय उसको ये चीज़ें, इंस्टेड मतलब बजाय उसके पढ़ाई के सब्स्टिट्यूट में उसको ये चीज़ें पसंद थी. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. इसके टीचर बोलते रहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क. अपना होमवर्क करो, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ लर्न नहीं कर पाओगे. एंड इट इज़ ट्रू. और ये सही भी था, क्योंकि समटाइम्स उसको ये लगता था कि ही इज़ एन इग्नोरमस. व्हाट इज़ इग्नोरमस? इग्नोरमस इज़ अ पर्सन हु इज़ इग्नोरेंट, हु लैक्स एजुकेशन, हु लैक्स नॉलेज. जिसको ज्ञान नहीं होता उसे बोलते हैं इग्नोरमस. सो ही यूज़ टू थिंक कि मेरे को सच में कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है. व्हेन यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग, है ना. बट वॉट कुड ही डू? बट वो कर भी क्या सकता था? बिकॉज वॉट वॉज द फैक्ट? ही हेटेड होमवर्क. क्योंकि उसे होमवर्क पसंद ही नहीं था. और पसंद नहीं था तो इसलिए वो उसके लिए कुछ क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि उसके लिए वो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लेता था. whenever you are interested in something, either in playing something, some game or something, you are interested. और जब रुचि बनती है किसी चीज़ में, इंटरेस्ट लेके करते हैं, बुरे मन से नहीं करते, मरे मन से नहीं करते, तो यू फील मोटिवेटेड टू डू दैट. सो ही वॉज नॉट एट ऑल मोटिवेटेड. ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था. So children, I believe that you are also given homework, and homework should be done with enthusiasm. वो एक तरह का रिकैपिचुलेटिव वर्क होता है जो आपने पढ़ाई की. अगर हम उसे बुरे मन से करेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू लर्न एनीथिंग. हमारा मेन एम शुड बी टू लर्न समथिंग, एंड यू हैव टू टेक, इन केस हमें इसके लिए हेल्प भी लेनी पड़े तो वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स. ओके, सो ही हेटेड होमवर्क. पैट्रिक को होमवर्क पसंद नहीं था. देन वॉट हैपन्स नेक्स्ट? Then one day he found his cat playing with a little doll, and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. अब एक दिन उसे क्या हुआ कि उसने एक बिल्ली को देखा, एक कैट को देखा, और उसने अपने मुंह पे एक छोटी सी डॉल पकड़ी हुई थी. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. ग्रैब्ड मतलब खींच लिया, उसने छीन लिया. जैसे ही उसने उसके मुंह से ग्रैब करके डॉल हटाई तो ही गॉट सरप्राइज. वो चौंक पड़ा क्योंकि वो डॉल नहीं थी. इट वॉज अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज.
size. You can see in the picture also, it is a small elf, it is a small tiny creature, tiny man, which was a elf. Elf क्या होता है, पुराने mythological stories and वैसे they are imaginary creatures, fairies and elves we have never seen in our real life, but elf is an imaginary creature. इन स्टोरीज़ वी से कि फेरी टेल्स वगैरह में होते थे, दो दे हैव गॉट मैजिकल पावर्स लाइक फेरीज एंड ऑल. दे आर वेरी टाइनी इन साइज एंड दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड ईयर्स. सो ये इनका डिस्क्रिप्शन होता है जनरली इन ऑल द चिल्ड्रन स्टोरीज एंड ऑल दैट. दे आर मोस्टली इन फैंटेसी स्टोरीज़ एंड फेबल स्टोरीज़, जो स्टोरीज़ रियल नहीं होती हैं, मैजिकल पावर वाली जो स्टोरीज होती हैं. सो इस तरह का एक टाइनी साइज़ का उसे एल्फ दिखा. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. अब नाउ वी सी द, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइनी एल्फ गिवन. सो वेन एवर वी आर डिस्क्राइबिंग समथिंग यू कैन विजुअलाइज इट इन अपनी माइंड, अपने जो माइंड की जो आइज़ हैं उनसे यू हैव टू विजुअलाइज द थिंग. सो अब हम विजुअलाइज़ करेंगे, हमने देखा तो नहीं है, हम विजुअलाइज़ करेंगे कि ही इज़ अ स्मॉल. अब जब उसने उसको डॉल समझा तो सोचो कि वो इट विल बी अ वेरी स्मॉल क्रिएचर. अब ही वॉज वेयरिंग अ वुल शर्ट. वुल शर्ट कौन सी, जैसे ऊन की शर्ट होती है, जैसे एक तरह से स्वेटर भी बोल सकते हैं. ही वॉज वेयरिंग इट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस. ओल्ड फैशन ब्रिचेस. एंड नाउ व्हाट इज़ ब्रिचेस? ब्रिचेस हेयर इज़ ब्रीचेस, नॉट ब्रिचेस. एक्चुअली वर्ड है, एक्चुअल वर्ड है ब्रीचेस. यू कैन सी हेयर ऑल्सो इट इज़ रिटन ब्रीचेस. ब्रीचेस, BREECHES. ब्रीचेस जो होते हैं ओल्ड फैशन शॉर्ट ट्राउज़र्स होते हैं, छोटे शॉर्ट्स टाइप के ट्राउज़र्स होते हैं. उसका रियल वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन इज़ ब्रीचेस, बट हेयर the writer has given it the word breeches. He has turned the breeches into breeches to rhyme it with witches. Here the writer has made the paragraph rhyme विच ईच अदर. ये सारी लाइन्स जो हैं, काफ़ी लाइन्स एक दूसरे से रिदम में हैं. सो यहाँ पर ब्रिचेस को विचेस के साथ राइम करने के लिए वहाँ ब्रीचेस को ही हैज़ डन ब्रिचेस. सो ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई हैट मच लाइक अ विचेस. एक हाई टॉल हैट भी पहनी थी उसने जो कि विच के हैट के जैसे लग रहा है. एंड विच आपको पता ही है कि जादूगरनी जो विच होती थी फेरी टेल्स में, उसके जैसा उसने हैट पहना था. ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. वो ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को उस बिल्ली के मुंह पे वापस मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपकी वो विश कोई भी पूरी करूँगा, मैं आपको वो प्रॉमिस करता हूँ, आपको वो वचन देता हूँ. सो ही सेज लाइक दैट. Now the third paragraph says, Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems, so he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. So 35 days and now A's, they both are rhyming. So you children, you listen to the rhyming scheme. Every paragraph has got a rhyming scheme. They are matching the lines with each other. So Patrick को believe ही नहीं हुआ कि इसने मुझे ये बोला कि I promise you that मैं आपकी हर विश पूरी करूँगा. That is a dream. ये तो सपना होता है कि कोई ऐसे बोले कि मैं आपका कुछ भी मांगो और मैं वो पूरा करूँगा. तो Patrick couldn't believe how lucky he was. उसे लगा मेरा लक कितना अच्छा है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, तो लक कितना अच्छा है. So he was the answer of all his प्रॉब्लम्स. अब तो उसकी सभी समस्याओं का अब उसको आंसर मिल चुका था, जवाब मिल चुका था. सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क. उसने क्या बताया, उसका क्या कंडीशन था कि मैं तुम्हें कैट को तब तक नहीं दूंगा, तब नहीं दूंगा अगर, सो दिस वॉज हिज कंडीशन, that you do all my homework, मेरा पूरा homework करोगे till the end of the semester. Now children, many of you when I was taking live classes, you asked me what is a semester. Semester is a period of time in which the year or the months are divided. When there are like अलग अलग टाइम होता है, कभी 35 days का, कभी like 4 months का एक semester होता है. When you go to graduation, when you do graduation, you are doing post graduation. अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में अलग अलग टाइम का सेमेस्टर होता है, जैसे कि PA1, PA2, हाफ ईयरली, दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेमेस्टर्स. सो सेमेस्टर्स आर बेसिकली अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ डिवाइडेड. सो इस तरीका जो पैट्रिक का सेमेस्टर था हेयर, इट वाज फॉर 35 days. उसका जो पीरियड ऑफ टाइम जो एक वो था फॉर वन बैच जो उसका वो करता था, वो 35 days का था. तो उन्होंने बोला कि मेरा पूरा होमवर्क आपको 35 days एक सेमेस्टर के एंड तक करना पड़ेगा, और अगर आपने अच्छा काम किया, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट A's. तो मुझे ए मतलब A's मतलब
ग्रेड ए मिलेंगे, मतलब माई वर्क विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो आई कुड गेट अ गुड ग्रेडिंग. सो ये काम के लिए वो ही आज द दिस एल्फ, वो उससे पूछता है. So now what happens next? The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I'll do it. So now this paragraph, the paragraph number 4, in this paragraph there is a description of how angry and how he was disapproving. ही डिडंट वॉन्ट टू डू दैट वर्क, जो उसे काम दिया गया था, बट उसके कितने गंदे रिएक्शन थे, किस तरीके से उस रिएक्शन से उसने समझा दिया कि ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी. तो ये पूरे भी जो भी रिएक्शन है वो सारे ये बताते हैं कि ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विथ वॉट द बॉय आस्क्ड हिम टू डू, बट स्टिल ही सेड कि मेरा लक ख़राब है एंड मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज ही नेवर हैड अ चॉइस. अगर वो ये मना करता तो वो अगेन कैट के मुंह में नहीं जाना चाहता था. तो हम ज़रा वील जस्ट लुक अपॉन दैट, हम ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट क्या था? द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. अब उस आदमी के चेहरे पे, एल्फ के चेहरे पे रिंकल आ गया, जैसे कि एक डिश क्लॉथ, जो कपड़ा, जो बर्तन साफ़ करने वाला कोई कपड़ा होता है, उस कपड़े को दे हैव सिमिली यूज़ किया है उसको, फिगर ऑफ स्पीच देयर इज दे हैव यूज्ड इट. उसका फेस, एल्फ का फेस इज़ कंपेयर टू द डिश क्लॉथ. क्यों किया है? क्योंकि उसके फेस पे रिंकल्स पड़ गई हैं. अब नाउ चिल्ड्रन, देर आर टू काइंड्स ऑफ रिंकल्स. इफ़ देर इज़ लाइक यू हैव योर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एट योर होम, देन देर इज़ लाइक ओल्ड एज, एंड ओल्ड एज में जब स्किन लूज़ हो जाती है तो नॉर्मल नेचुरल रिंकल्स पड़ जाती है, स्किन लूज़ हो जाती है, एंड वी गेट रिंकल्स. वो रिंकल डिफरेंट है. यहाँ पर रिंकल का मतलब क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ गॉट डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट प्रेटेक्स्ट, कैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है. यहाँ रिंकल का मतलब है जब आप कभी एंग्री होते, यू मेक फ्राउन फेसेस, तो आपके ये क्या आ रहा है? देयर द स्किन गेट्स फोल्ड. सो वेन एवर यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ फेसेस, यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल, सो देयर द स्किन फोल्ड्स एंड दीज आर कॉल्ड रिंकल्स. उसके चेहरे पे इतने रिंकल्स आने लगे क्योंकि वो गुस्से में था, एंगर में था. वो रिंकल्स कैसे लग रहे थे? जैसे किसी डिश क्लॉथ को हैम्पर में किसी बॉक्स में फेंक दिया गया हो. सो वेन एवर यू इमेजिन, वेन एवर यू आर थ्रोइंग अ क्लॉथ, किसी कपड़े को फेंक रहे हो, सो डज दैट क्लॉथ गो स्मूथली? वो सीधे जाके नहीं गिरता है, वो हमेशा रिंकल होके गिरता है. सो his face was very wrinkled, ही मतलब he was very angry, he doubled his fist, उसने अपनी फिस्ट को भी ऐसे मुट्ठी को गुस्से में वो किया. he kicked his legs, उसने पैर पटके. these all are the signs of showing anger and dismay and disapproval. वो नहीं करना चाहता था. he grimaced and scowled and pursed his lips, अपने होंठ दबा रहा है, गुस्से दिखा रहा है. and then he says, am I cursed? क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है? देन बट आई विल डू इट, बट मुझे तो ये करना ही पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज ही हैड नो चॉइस. अगर वो ये नहीं करता तो उसे कैट के पास जाना पड़ता. So children, this chapter is little like, if I teach you properly and with meaning and all that, so it will take time. So this video, I can't make the video too long. So what I'll do, I'll make it like till 6 paragraphs we'll do in one video, so that in next video I'll explain you the next portion, so that it will not be very difficult for you to get the video downloaded. and अगर मैं आपको अच्छे से explain ना करूँ तो then also it doesn't make any sense, so I don't want to rush it. So we'll do till 6 there are 10 passages. I'll do till 6 passage in one video and the rest 4 in other. So here we go to the 5th paragraph. Now what happens next? And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he'd say, and Patrick would have to help in whatever way. So here say and way, they both are rhyming together. So आगे होता क्या है कि and true to his word, जो उसने बोला था वो उसने किया. Whatever he said he wanted, he said he was doing it. क्या किया उसने एल्फ ने? He began to do Patrick's homework. उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया. Except there was one glitch. Now what is the meaning of glitch? The technical meaning of glitch का real meaning क्या होता है? It is a fault in a machine, generally जो
कोई मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, हिच आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया जिससे वो मशीन काम नहीं कर रही है, देन वी से इट इज़ एन इनफॉर्मल वर्ड, इसका कोई फॉर्मल वर्ड नहीं है, इसको ग्लिच बोल देते हैं कि हिच आ गया, कि उसमें रुकावट आ रही है. सो इसी तरीके से अगर ना केवल मशीन में, दिस एम्प्लाइज टू एवरीथिंग, कि अब हम इनफॉर्मली हम ये वर्ड हम यूज़ करते हैं वेन एवर वी फेस एनी प्रॉब्लम. तो वी से जब आप गेम खेलते हो तो आप बोलते हो देयर इज़ अ ग्लिच इन द गेम. सो वो रुकावट है, कहीं पर कुछ आगे हैंग ऑन हो गया है. इसी तरीके से व्हेन ही वांटेड टू डू पैट्रिक का होमवर्क, देयर वाज अ ग्लिच, उसमें एक प्रॉब्लम थी. क्या प्रॉब्लम थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू. उसको ये नहीं पता था कि क्या करना है. ही न्यू कि उसे लिखना है, बट वो कैसे सॉल्व करना है, ही वॉज नॉट हैविंग द सॉल्विंग कैपेबिलिटी, ही वॉज नॉट नोइंग द आंसर्स, ही कुड ओनली राइट द आंसर्स. सो दिस वॉज द ग्लिच. सो ही नीडेड हेल्प. अब उसको तो हेल्प चाहिए थी. जब भी उसे कुछ काम करना था, यूज टू से हेल्प मी, वो बोलता था. एंड पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करनी पड़ती थी. सो देर आर टू वेज. अगर उसको खुद ही काम करना था तो उसे खुद सॉल्व करना था, तो देन इट वुड बी, मतलब उसमें पैट्रिक की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती. बट नाउ ही हैज़ टू टेक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैट्रिक. He used to say, I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What's even better? Look at the word and sound it out by each letter. So, better and letter here is, they are both rhyming together. So, वो चीखते हुए बोलता है कि मुझे ये वर्ड नहीं पता. ही स्क्वीक्ड इन अ श्रिल वॉइस, ही सेज, कि रीड करते करते वो बोलता है, एल्फ बोलता है, एल्फ इज़ टॉकिंग टू ही इज़ स्पीकिंग टू पैट्रिक. ही सेज मुझे ये वर्ड नहीं पता है. एंड पैट्रिक से ही आस हिम टू गेट अ डिक्शनरी. वो बोलता है गेट मी अ डिक्शनरी, डिक्शनरी लाओ. देन ही सेज नो. व्हाट्स इवन बेटर. इससे भी सही ये रहेगा कि डिक्शनरी लाने के बावजूद आप ये करो, उसके बजाय आप क्या करो, आप मुझे डिक्शनरी से इस वर्ड का मीनिंग निकाल के खुद बताओ. एंड से इट लाउड, साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. एक एक लेटर पढ़ के इसके वो मीनिंग करके मुझे बताते रहो. मतलब दैट वर्क ऑल्सो ही वॉन्टेड टू डू, कि पैट्रिक करे बोलेगा, मैं सिर्फ आई विल ओनली राइट. सो चिल्ड्रन, नाउ यू सी दिस, कि यहाँ क्या हो रहा है, दिस व्हाट इज़ दिस स्टोरी गोइंग अबाउट. अभी आगे जाके हो क्या रहा है. एल्फ इज day by day he is telling Patrick to do work rather than he himself. He is writing, but he wants his involvement in everything, because he doesn't know tables, he doesn't know the solution of anything. So Patrick has to eventually read, Patrick has to eventually learn, Patrick has to eventually dictate. उसे बोल के सुनाना है, तभी he will be doing. So यहाँ पर किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, पैट्रिक की. और पैट्रिक को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है. पैट्रिक माइट बी थिंकिंग दैट द एल्फ इज़ हेल्पिंग मी इन हिज मैजिकल पावर्स, बट पैट्रिक इज़ हेल्पिंग हिमसेल्फ. पैट्रिक खुद की हेल्प कर रहा है, बिकॉज इफ़ ही इज़ नॉट रीडिंग द एल्फ इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क. सो दैट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग. अब आगे देखते हैं. व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. वॉट आर द टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड. वो वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down besides me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. So here you can see the elf was always nagging. He was always shouting. ही वॉज ऑलवेज ट्रबलसम. वो ज़ोर से चीखता रहता था और शाउट करता रहता था, वो नैग करता रहता था. ही वॉज गेटिंग लाउडर एंड लाउडर. इस पूरे पैराग्राफ में बताया कि ही वॉज स्क्वीकिंग, श्रीकिंग, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. इनके मीनिंग्स लिखने हैं हमें. सो वी विल बी राइटिंग इट. सो ही यूज़ टू स्क्वीक, श्रीक, उसको ज़ोर ज़ोर से चीखता था. एंड ही यूज़ टू से कि जैसे ही मैथ्स की तरफ आए, व्हेन इट केम्स टू मैथ, जैसे ही मैथ की तरफ हम आए, तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक का लक और भी ख़राब था. क्यों ख़राब था? क्योंकि एल्फ को मैथ्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था. ही यूज़ टू से, ही वॉज सेइंग कि ये टाइम टेबल क्या होता है, ये टेबल्स क्या होते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, व्हाट आर दे. हम एल्फ को तो कुछ भी नहीं पता. वी एल्फ नेवर न्यू नीड दैट. हमें किस किस की चीज़ की ज़रूरत नहीं है. हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, दे ऑल आर टर्म्स ऑफ मैथ्स एज यू ऑल नो. तो वो बोलता है, एल्फ बोलता है कि हमें ये सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये मुझे कुछ नहीं पता है. So you have to help me.
Here sit down besides me, मेरे बगल में बैठो. You simply must guide me, तुम्हें मुझे गाइड करना है. Elves knew nothing of human history, हम elves को we don't know anything about human history. ये इंसानों के बारे में जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इंसानों के बारे में क्या चीज़ें हैं वो हमें कुछ नहीं पता. To them it's a mystery. History and mystery now they are rhyming together. वो बोलते हैं ये हमारे लिए मिस्ट्री है, पहेली है. जिस चीज़ का हमें आंसर नहीं पता होता वो हमारे लिए पहेली है. तो बोलते हैं हमें कुछ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, वो मिस्ट्री है हमारे लिए. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, छोटा एल्फ जो पहले से ही शाउटर था, जो ऑलरेडी चिल्ला रहा था, ही गॉट इवन मोर लाउडर, वो और ज़्यादा चीखने लगा. यू गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ. आई नीड बुक्स, मेरे लिए बुक्स लाओ. मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लाओ. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और आप मुझे पढ़ने में मदद भी कर सकते हो. So this was the thing. So how it goes, like he made Patrick do his homework. He was eventually involving him in everything, and Patrick really, and now in the next video, in the next class, the story is getting interesting as it made Patrick to do his work himself. जो बच्चा कभी अपना काम खुद करता नहीं था, जो पढ़ता ही नहीं था, जिसे इंटरेस्ट ही नहीं था, वो अपना सिर्फ होमवर्क कराने के चक्कर में कि आई विल गेट गुड ग्रेड बिकॉज एल्फ इज़ हेल्पिंग मी, उसे ये नहीं पता है कि आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ. ही इज़ थिंकिंग एल्फ इज़ हेल्पिंग मी, एंड ही स्टार्टेड पिकिंग अप दिस हैबिट ऑफ डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ, विच इज़ नॉट रियलाइजिंग, जो उसे लग नहीं रहा है, जो उसे लास्ट में भी लगा कि एल्फ नहीं किया है. But who is helping him? He is helping himself. So we'll read the story in the next part of the story in the next video. I hope you liked the chapter, and you liking the story, and you whatever words you can go to the video, whatever hard words I explained, you can just go to them, and you have to jot it down, write it down in your notebooks also. Till then we'll meet in the next class, and you can ask me any queries about this part in the next class. Thank you. Have a nice day.